استقبال ماہ رمضان یعنی ماہ رمضان کی آمد کا استقبال کرنا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شعبان کا آخری عشرہ ہوتا، شعبان کے آخری دن گزرتے ہوتے تو اس وقت صحابہ کو جمع فرماتے اور ان کے درمیان تقریر فرماتے اور کہتے ہیں لوگوں، تمہارے سروں پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جس کا پل پل رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، سعادتوں والا ہے، مغفرتوں والا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اس مہینے میں بندے کو صبر نصیب ہوتا ہے اور صبر کا صلہ جنت کی شکل میں اس کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مہینے میں جس نے ایک روزے دار کو روزہ کھلایا، افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر کسی کے پاس اتنی دولت نہ ہو کہ روزہ کھلا سکے، افطار کرا سکے، تو حضور فرماتے ہیں میرا رب بڑا کریم ہے، اگر کسی نے اپنے مومن بھائی کو ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے بھی افطار کرائے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو ایک کھجور کھلایا روزے میں، افطار میں، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور نہ کھجور ہو نہ دودھ ہو، کم سے کم ایک گھٹ پانی پلا کر روزہ کھلا دے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، حضور فرمانا ہے سبحان اللہ، رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ روزے دار کو روزہ کھلانے کی یہ برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اس مہینے میں جس نے اپنے ماتحتوں پر رحم کیا، آپ سیٹھ ہے، آپ کے پاس نوکر کام کرتے ہیں، ان نوکروں کو آپ نے آرام دیا، کام روزانہ کے بنسبت کم لیا، حضور فرماتے ہیں اللہ ان کو بھی بے حساب بخش دیتا ہے اور جہنم سے ان کو آزاد فرماتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی، تو پہلا رمضان جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں پر خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ بہت آہستہ بولے آپ سبحان۔ ہماری زندگی بھر کی تمنا یہ ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں اور خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس رات، اور جس کو خدا اس رات میں رحمت بھری نظر سے دیکھ لیا، حضور فرماتے ہیں اس کی جنت کنفرم ہے، اس کی جنت یقینی ہے۔ یہ رمضان کے پہلے روزے کی رات میں اللہ تعالیٰ خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر دن، ہر پل، ہر لمحہ میں دیکھ رہا ہے، لیکن اس رات میں خاص نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر نظر رحمت ہوگی اس کی بخشش یقینی ہوگی۔ امید کریں، یقین کریں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں مالک ہم بھی اس میں شامل ہو جب تیری نظر رحمت بندوں پر ہو۔ حضرات گرامی، میرے آقا فرماتے ہیں ہر رات میں، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 70,000 افراد کی بخشش فرماتا ہے۔ اور جب 32واں رمضان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے ماہ رمضان میں لوگوں کی بخشش کی اتنی ہی ایک رات میں بخشش فرماتا ہے، یعنی ہر روز 70,000 اور 29 رمضان کو پورے مہینے میں جتنوں کی بخشش بھی اتنی تعداد کے مطابق اس ایک رات میں بخشش فرماتا ہے۔ اور عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ خاص نظر رحمت فرماتا ہے بندوں پر اور بخشش کا عام اعلان فرماتا ہے۔ ہم اور آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کے بلانے پر سوتے رہتے ہیں، کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات، رمضان ہو یا غیر رمضان، شب برات ہو یا کوئی اور رات ہو، ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر میں یعنی تہجد کے وقت آسمان اول پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس کی بارگاہ سے اعلان کیا جاتا ہے اے بندو میں تمہارے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بس معافی چاہو، تم دو آنسو بہا لو،
तुम अपने गुनाहों पर एतराफ कर लो कि मालिक यकीनन मैं गुनाह किया, मगर तू रहीम है, तुम बस आकर इतना बोलो, मैं तुम्हारी बख्शिश का ऐलान करता हूँ। हर रात में मेरे मुसलमान भाइयों, हर रात में अल्लाह ताला बंदों को ये आवाज देता है, उसकी रहमत बुलाती है, ऐ मायूस होने वाले बंदे आजा, ये तेरे खुदा का दरबार है। दुनिया के किसी दर से वो नहीं मिलता जो मेरे दर से मिलता है। आप दुनिया वालों के दरबारों में जाकर, कोर्ट कचहरी में जाकर जुर्म का एतराफ करें कि मैं मुजरिम हूं, तो उन्हें माफ नहीं करता, सजा देते। जहां जाकर जुर्म का इकरार करो तो और दरबार होते हैं जहां जुर्म का इजहार करने पर सजा दी जाती है। ये खुदा का वाहिद दरबार है, यहाँ आकर जुर्म का इजहार करो तो अल्लाह सजा नहीं देता, माफी का परवाना अता करता। इस कदर वो रहीम रब है, इस कदर वो करीम रब है कि उसके दरबार में आने से बंदा अगर गुनाहों का इकरार करे आकर के, तो अल्लाह फरमाता है, मेरी शान तो ये है मेरे बंदे सुन, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि मैं सारी जिंदगी भर के तेरे गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट करके रखूंगा, तुझे बख्शूंगा ही बख्शूंगा। अब वो तेरे गुनाह को गुनाह रहने नहीं दूंगा, उनको नेकियों में बदलूंगा। ऐसा भी कोई है तुम्हारा जिंदगी में चाहने वाला तुम्हारा? सगी माँ बेटे से वो मोहब्बत नहीं करती जो हमारा रब अपने बंदों से मोहब्बत करता है। फिर भी हम उस खुदा के दरबार से दूर होते हैं। रात के हर पिछले पहर में जब उसकी बारगाह से आवाज दी जाती है तो हम और आप तो ख्वाबे खरगोश में सो चुके होते हैं, रात में नींद में हम मसरूफ होते हैं, जबकि अल्लाह हमें आवाज दे रहा हो। तो अल्लाह ताला की रहमत तो बड़ी है ना, बंदे किस कदर उसके दरबार से दूर भागेंगे, आना तो उसी दरबार में, लेकिन अल्लाह ताला फिर तुम्हें छोड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की शान है, वो कहता है मेरे बंदो रोजाना मैं तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम सोते रहते हो, चलो मैं तुम्हें शबे बारात दे रहा हूँ। अब शबे बारात में तो तुम नहीं सोओगे ना, जागोगे ना। और सुनो, हर रात में मैं तहज्जुद के वक्त में आवाज देता था, मेरी रहमत आवाज देती थी। अब शबे बारात आएगी तो मैं तहज्जुद के वक्त में नहीं, मगरिब से ही मेरी रहमत आवाज देना शुरू कर दूंगा। मगरिब से लेकर सूरज के निकलने तक अगले दिन के मेरी रहमतें तुम्हें बुलाने लगेगी। सुभान, बंदा उस वक्त भी मग़फ़िरत की दुआ कर ले तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे बदबातिन शख्स है, कुछ ऐसे नाखलफ लोग हैं कि उस शबे बारात में भी वो लोग तौबा नहीं करते, गुनाहों से माफी नहीं मांगते, लेकिन अल्लाह उनको भी नहीं छोड़ता, उनको भी नहीं छोड़ता। चल शबे बारात में तूने हल्के में लिया ना, अब मैं पूरा महीना ही दे रहा हूं तेरे को, माह रमजान के नाम पर पूरा महीना दे रहा हूं। अब इसमें मगरिब के बाद या फजर तक की कैद नहीं है, बल्कि माह रमजान का हर लम्हा ही ऐसा है जिस लम्हे में तू गुनाहों से तौबा करेगा अल्लाह तेरी बख्शेगा। कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। कमी है हम में, बंदों में कमी है, हम ही खुदा के दरबार से दूर है, इसीलिए आज दर दर की ठोकरें हम खाते हैं। जिस दिन खुदा के दरबार से आप जुड़ जाएंगे, यकीन जानिए जमाना आपके कदमों में आएगा, कदमों में आएगा जमाना इंशाअल्लाह। तो ये माह रमजान आने वाला है, इसके आप कदर करें। इसका अदब इस तौर पर है कि मेरे आका फरमाते हैं, ला तक़ूलू जाअ रमजान व ज़हब रमजान, बल क़ूलू जाअ शहर रमजान व ज़हब शहर रमजान। आमतौर पे बंदे हम कहते हैं रमजान आया, रमजान गया, बोलते रमजान, खाली रमजान बोलते। फरमाते हैं माह रमजान को सिर्फ रमजान मत कहो, रमजान आया रमजान गया ये मत कहो, बल्कि कहो तो ये कहो रमजान का महीना आया, रमजान का महीना गया। ये माह रमजान के नाम का भी अदब हमको सिखाया गया, तो उसमें वक्त कैसा गुजरना है वो फिर हमें सोचना है। दिन में अल्लाह ताला ने रोजे को फर्ज किया, रात में क़याम यानी नफिल नमाजें रखी तरावीह की शक्ल में, तो दिन में रोजा रहना है, रात में तरावीह पढ़ना है। और सिर्फ खाने पीने और शादीशुदा का बीवी से मुलाकात से बचने का नाम ही रोजा नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आंख का भी रोजा रहना है,
कान का भी रोजा रहना है, जबान का भी रोजा रहना है, हाथ पैर का भी रोजा रहना है। वो क्या, आप सिर्फ खाने पीने से बचे और आंख बराबर बुराई देख रही है, आंख बराबर यूट्यूब देख रही है, आंख बराबर फेसबुक चला रही है और गंदे मनाजिर भी उस पर आ रहे हैं, उसको भी आपकी निगाहें देख रही है, तो ये रोजा नहीं है। कान से गाली सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, बदगोई सुन रहे हैं, गीबत चुगली सुन रहे हैं, ये कान का रोजा नहीं हुआ। तो अपने आज़ा का भी आप रोजा रखने की कोशिश करें, निगाहें भी आपकी हिफाजत में रहें, कान भी हिफाजत में रहें, हाथ से कोई गलत चीज की तरफ हाथ ना बढ़े और कदम भी गलत रास्ते पर ना चले। इस तरह आप मुकम्मल रोजा रखेंगे तो यकीन जानिए हमें और आपको तक़वे की दौलत मिल जाएगी। और अगर सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा समझेंगे आप, तो जैसा रमजान का महीना आ रहा है ऐसी रुखसत भी हो जाएगा, फिर हम जहाँ थे वहीं पर रह जाएंगे। लिहाजा आने वाले महीने की हम कदर करें और इसमें रोजे बंदों पर, मर्द औरत पर फर्ज है, इसका इस्तेमाल करें और नियतें अच्छी रखें और तकल्लुफात को बर्दाश्त करें, तकलीफों को बर्दाश्त करें। गर्मी है, शिकवा ना लाएं ज़बान पर, बल्कि मौसम गर्मा के रोजे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ऐसे में आप कुर्बानी देंगे ना, और आप इम्तिहान में जी रहे हैं और इम्तिहान में कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब आप मशक्क़तें उठाएंगे और सब्र की ज़िंदगी गुजारेंगे। और सब्र का सिला कुछ नहीं है, जन्नत है। और हुजूर फरमाते हैं सारे अमल का 1 से लेकर 700 गुना तक अजर है, लेकिन रोजे का जो अजर है इसके बारे में हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझसे कहा, महबूब रोजा बंदे ने मेरे लिए रखा है, अस्सौमु ली, रोजा बंदा मेरे लिए रखता है तो मैं उसको 1 गुना 10 गुना 700 गुना नहीं दूंगा, बल्कि मैं ही उसकी जजा बन जाऊंगा। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बि औ कमा क़ाल। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते, अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है, मैं ही उसकी जजा हूं। तो कोई भी नेक काम करने से एक नेकी से लेकर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब मिलता है, लेकिन रोजा ऐसी इबादत है जिसको करने से सवाब बाद में मिलता है, खुदा पहले मिलता है। सुभान अल्लाह। ये महीना हमें नसीब होने वाला है, कदर करने वाले इसकी कदर करते हैं और ना कदरे लोग तो ना कदरे ही होते हैं। बहरहाल यहाँ जितने लोग आए हैं खुश नसीब हैं, ये बातें आपसे हो गई, वो इस उम्मीद पर कि आप इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमें उस माह मुबारक का पुरजोश इस्तक़बाल करके उस महीने में तक़वे की दौलत हासिल करके तुझे राज़ी करने की मालिक तौफ़ीक़ अता फरमाए।